Good morning to all. Here we are about to discuss the atmospheric pressure and the pressure affecting it. Okay, so in our previous video only we have discussed the definition of atmospheric pressure, and we know that our earth is surrounded by a blanket or an envelope of air which is known as atmosphere, and we know that earth's atmosphere has different layers which exerts a pressure, which exerts a force to the surface of the earth. Okay, and thus the pressure exerted by the earth atmosphere is known as atmospheric pressure. Okay, this is also known as barometric pressure, and which is measured by a device which is known as barometer. Okay, and in normal situation we consider the atmospheric pressure is about 76 centimeter of the mercury column. Is that clear? Now let us discuss the factor affecting our pressure. Okay, so this is temperature, humidity, sorry for this. Okay, now temperature, humidity, density of air, and the most important here is altitude. This is the most important one, so we will be dealing one by one with all the factors. Okay, now the first factor is variation of pressure with temperature. We know that when we increase the temperature means we are giving heat, and decrease the temperature means atmosphere becomes cool. Now when we are just giving the heat में क्या होता है, जो substance होता है या जो molecule है air का, that they become like a gaseous. Why is it so? Because when we heat it, the molecules get the kinetic energy, and due to their kinetic energy they move very far apart from each other. जैसे ही आप उसको गर्म करते हो, so गर्म करने के बाद क्या होता है, जो molecules होते हैं air के, ये दूर दूर एक दूसरे के भागने लगते हैं, due to which their density becomes less. उनकी density क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो अगर density कम है, मास कम हो जाएगा, और अगर मास कम है तो ऑब्वियसली उनके कारण जो प्रेशर लगेगा दैट विल ऑल्सो बी लेस. ऑन द अदर हैंड, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, दैट मीन्स इफ वी कूल द एयर, कूलिंग ऑफ एयर मीन्स and their kinetic energy will become less, and the molecules will be forced to come close to each other. If they will come close to each other, they will become dense, and if they will become dense means their mass will be more, and if their mass will be more, that means the pressure exerted by them will be more. So this is how the pressure varies with the temperature. On increasing the temperature, the pressure becomes less, and on decreasing the temperature, the pressure becomes more. Now the next is variation of pressure with humidity. What is humidity? Humidity is normally the presence of air molecule plus the water vapor. अगर air में water vapor भी present हो जाता है तो it becomes humid, and humidity means ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट हो गया. वाटर वेपर मीन्स उसमें H2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो गया, हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो गई. फॉर एग्जांपल अगर एक ड्राई एयर को कंसीडर कर रहे हैं, सो ड्राई एयर इज हैविंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ओके, बट इफ इट से ह्यूमिड एयर मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी आ गया. एंड वी नो दैट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अ वाटर मॉलिक्यूल, एंड हाइड्रोजन इज वेरी लाइट एयर. So how it becomes a water molecule? See, we already have nitrogen in the air and oxygen in the air. Now hydrogen when combines with oxygen, it forms H2O, and thus the air becomes humid. And we know that hydrogen is very light, therefore when it is mixed with oxygen, अब जो normal dry air का था ये N2 और O2 था, इनका जो mass होगा वो इस humid air के mass से ज़्यादा होगा. Therefore if the air is dry, it will exert more pressure, whereas if it is humid, it will exert less pressure. Now the next is variation of pressure with density of air, that I have already discussed to you. As increase in density will decrease the pressure. Density increase means more mass. Sorry, the density increase means increase in pressure. Density is directly related. Density is directly proportional to the pressure. If we increase the density, the mass will increase, and thus the pressure will increase. If we decrease the density, the mass will decrease, and thus the pressure will also decrease. Now the next is variation of pressure with altitude. This is more important. Altitude means height of the air column. Altitude means above the sea level. If we go up higher above the sea level, as we go up above the altitude, then how the pressure will vary. Now if we just keep on increasing with the height, if we go up
above the sea level, then the pressure goes on decreasing, because ये जो अर्थ है इसकी जो सबसे नीचे की लेयर होगी, ठीक है, इस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, धीरे धीरे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। दूसरा कारण भी क्या है कि अर्थ क्या है, सबसे मैक्सिमम जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट होती है वो सरफेस के पास होती है, जो जैसे जैसे आप दूर जाओगे लेयर की, इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी वीक होती जाएगी, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, एंड if they will be far apart from each other, they will become a lighter air, and lighter air will exert a less pressure. Therefore, as we will go up with the height, or as our altitude increases, the pressure will decrease. Therefore, it is already written the lower area or the plains have high pressure. Here the pressure is high, whereas if we will go on mountain, the pressure, atmospheric pressure, becomes less. Now let us discuss some of the consequences. Consequences means at high altitude breathing becomes difficult and nose bleeding may occur. Why is it so? Because at high altitude we know that atmospheric pressure is less. Atmospheric pressure कम हो गया, जब आप ऊपर गए तो atmospheric pressure कम हो गया. Atmospheric pressure ये आपकी बॉडी है, atmospheric pressure अब कम हो गया, और आपके अंदर का जो ब्लड प्रेशर है ये ज़्यादा है, अब इतना ज़्यादा है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ओवरकम कर ले रहा है, बिकॉज एज वी आर गोइंग अप ऑन द माउंटेन्स, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है, जो आपके अंदर का ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण द नोज स्टार्ट्स ब्लीडिंग, क्योंकि अंदर का जो ब्लड प्रेशर है ये ब्लड को बाहर की तरफ फोर्स कर रहा है जाने के लिए. द नेक्स्ट इज एट हाई एल्टीट्यूड फाउंटेन पेन लीक्स. फाउंटेन पेन क्या होता है? फाउंटेन पेन के अंदर इंक भी होगा और एयर भी प्रेजेंट होगी, सो दोनों टुगेदर इनके पास जो प्रेशर होगा, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे बाहर का प्रेशर सिमिलरली कम हो जाएगा, आपके पेन का प्रेशर ज़्यादा होगा, और पेन का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि जो एयर है पेन के अंदर, इट विल फोर्स द इंक टू लीक आउट. Now, weather forecast by barometer. What is barometer? Barometer is actually a device which is used to forecast a weather. ठीक है, बैरोमीटर को आप देख भी रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये रेन का साइन है, ठीक है, फेयर वेदर है, वेरी ड्राई है, ठीक है. तो अब डेंसिटी, अगर आप मतलब वेदर को फोरकास्ट करना चाहते हैं कि वेदर कैसा होगा, तो आप बैरोमीटर से कैसे पता कर सकते हैं? ठीक है, आप कैसे पता कर सकते हैं कि अब आप ये देखो, ये जो आपको दिखा रहा है ये वेरी ड्राई, ये 30 पे एंड 29 पे ये स्टॉर्म, ठीक है. सो एज लाइक अभी आपको इससे पता चलता है कि वेदर फोरकास्ट क्या होगा. इफ़ द बैरोमेट्रिक हाइट एट अ प्लेस सडनली फॉल्स, अगर बैरोमेट्रिक की जो हाइट है वो सडनली फॉल हो जाती है, ठीक है, एकदम से गिर जाती है, ये जो ये जो ऊपर दिया है ना, दिस इज बैरोमेट्रिक हाइट. अगर बैरोमेट्रिक हाइट एकदम से कम हो जाएगी, सो किसका साइन है? साइक्लोन का या फिर स्टॉर्म का, ठीक है. और अगर ग्रेजुअली फॉल हो जा रहा है, मतलब ग्रेजुअली फॉल हो रहा है, धीरे धीरे फॉल हो रहा है, सो देयर इज अ चांस ऑफ रेन का है. अगर ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है, अगर जैसे जैसे आप इंक्रीज पे जा रहे हो, देखो हाइट जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो कैसा वेदर हो रहा है? ड्राई वेदर हो रहा है. अगर सडन राइज आ जा रहा है, ठीक है, बहुत ही अचानक एकदम से बैरोमेट्रिक हाइट में एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट अचानक आ जा रहा है, तो वो एक्सट्रीमली ड्राई वेदर हो जाएगा. एंड इफ़ देयर इज़ नो एब्रप्ट चेंज, अगर कोई भी चेंज नहीं है, नॉर्मल वैल्यू पे है, देन इट विल बी अ नॉर्मल वेदर. इज दैट क्लियर? Now, this barometer was discovered by a scientist known as Evangelista Torricelli. इन्होंने invent किया था, but the name was given by Sir Robert Boyle. Is that clear? Now, one more topic is left, that is altimeter. That is altimeter. Altimeter होता क्या है? बेसिकली एल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप फ्लाइट्स के या एरोप्लेन के या एयरक्राफ्ट की हाइट को पता करते हो कि कितने एल्टीट्यूड पे, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे आपका जो एयरक्राफ्ट है या जो एरोप्लेन है ये है, ठीक है. ये बेसिकली होता क्या है? ये एक एनेरॉइड बैरोमीटर होता है. बैरोमीटर डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, सो इट इज़ एनेरॉइड बैरोमीटर, ठीक है, विच इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू मेजर इट्स एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड पता करने में आता है. ये जो एनेरॉइड बैरोमीटर होता है ना, इसके अंदर एक ऐसे वर्टिकल कॉलम में सर्कुलर में मरकरी फिल होती है, ये मरकरी फिल होती है, ठीक है. तो अब जैसे जैसे ये मरकरी वेरी करती रहेगी आपको एल्टीट्यूड पता चल जाएगा. ये अगर सी लेवल है, फॉर एग्जांपल ये 0 फीट पे है,
तो 0 फीट पे एक फिक्स वैल्यू होती है, डेट इज़ 29 का आपका सेंटीमीटर की हाइट हो गई। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो ये प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। प्रेशर कम क्यों हो जाता है कि ये जो लिक्विड है ना, ये जो मरकरी है, ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है जैसे आप हाइट में इंक्रीज करते हो। सो ये जो एल्टीमीटर है या जो एनोरॉइड बैरीमीटर है, इसके अंदर जो मरकरी होगा, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे, इसका जो अंदर का बैरोमेट्रिक लिक्विड है, दैट इज मरकरी, दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग इन हाइट। ठीक है, अब कैसे, जैसे ही आप 1000 फीट पे, हर 1000 फीट की ऊंचाई पे जैसे ही आप जाते हो, जो मरकरी की हाइट में डिक्रीमेंट आता है वो 1 इंच का आता है। फॉर एग्जांपल 1 इंच का जो बैरोमेट्रिक हाइट है ये कम हो गया, दैट मीन्स आप 1000 फीट चले गए, और 1 इंच कम हो गया, दैट इज और 1000 फीट चले गए। तो पर 1000 फीट पे जैसे ही आप जाते हो, जो बैरोमेट्रिक लिक्विड है दैट इज मरकरी की हाइट में 1 इंच का डाउनफॉल आता है। सो दिस इज हाउ यू जस्ट कैलकुलेट विद द बैरोमेट्रिक हाइट, यू आर एबल टू कैलकुलेट द एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल. Kindly try to relate this video with the book material. Thank you.